Hello guys, so this is a video that what are the messages that you need to hear right now. So let's get started with the video and welcome guys on Blastero, and let's get started with the video. Let me shuffle the decks now. क्या messages आ रहे हैं for my viewers, for my जो भी वीडियो देखेंगे उनके लिए क्या messages हैं that what they need to hear right now, or anything special messages about this week that they do need to listen it. What are the messages that they need to listen? I heard karmic return. Some karmic person is coming into your life, but you are being blessed with these karmic persons. वो आपको कुछ नहीं करेंगे, आपका कुछ इस चीज़ में बुरा नहीं होगा. एंड व्हाट आई एम फीलिंग ना, उस इंसान का बुरा होने वाला है इसमें, जो कि ऑब्वियसली अच्छे के लिए होगा, बट कुछ कार्मिक सिचुएशन है. मे बी दिस ओके सम पर्सन हैज़ डन समथिंग बैड टू यू. कुछ बेट्रेयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ तो करा है किसी इंसान ने आपके साथ. सो यू आर गाइड. तो फिर वो जो इंसान है, अब उसको उस चीज़ को पे बैक करना है बाय गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन. या देयर इज़ वन पर्सन हु done something wrong to you in the past is coming again into your life, and this time whatever you faces during that situation, उस चीज़ को वो पे बैक करने आ रहे हैं इंसान. That's the first thing. Messages that they need to hear right now for this week, that is very important for them. Yeah, just look. Here is the Justice card. कुछ ना कुछ तो justice हो रहा है. Someone betrayed you, someone do something bad to you, someone said lie to you or something, and they are getting their karma now. आपके सामने दिखेगा उसको इंसान की कर्मा पे बैक करते हुए आपके सामने होगा सब कुछ. एंड एनी अदर मैसेजेस? जस्ट लुक. Magician, 6 of Cups, 9 of Pentacles. That's someone being into the magician energy, because that person feels that you are a very easy person to be manipulated. You are a very easy target for that person. And 6 of Cups shows some reconciliation coming from the past. ठीक है, कि कोई पास से इंसान आ रहा है who manipulated you in some situation in the past, but now you are being into the 9 of Pentacle energy. Next is the disappointment in some affairs. There's some disappointment that is going on in his or her life, whoever the karmic is. उसकी लाइफ में, उनकी लाइफ, उसकी whatever, तो कुछ हो रहा है. There's something disappointing happening in their life, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लाइफ में दोबारा reconciliation के लिए आ रहा है. There is some disappointment. There is something that is just see. At the back we have an arrogant, boastful person. You should not cross. मैंने cross को choose पढ़ा, यानी कि आपको इस इंसान को चूज़ नहीं करना है. एंड यू विल बी रिसीविंग or grabbing a precious gift, and a secret admirer is here at the back. So आपको बोला जा रहा है there is some person who is coming towards you who is very arrogant, who have a very boastful energy, who is very egoistic, who thinks himself or herself to be as the top-notch person. So that person is coming into your life. This could be an older man. Yeah, so there is some disappointment that is happening in their life. So
तो उस सिचुएशन से शायद आप उनको कुछ प्रॉफिट दे सकती हो, उस सिचुएशन में दे सकते हो एंड कुछ तो कर सकते हो. So that's why that person is coming towards you, because with the Nine of Pentacles, like you are being into your queen or king energies, कि मतलब self independent वाली energy, that you don't need anyone. Not a king or queen but a prince and princess, because king and queen वाली पोजीशन पे अभी आप गए नहीं हो. It's just अभी आप थोड़ा सा नीचे हो, आप prince और princess वाले हो. तो you are the prince or princess, जो कि मतलब इट्स अ मैजिशियन, जो कि यहाँ पे नेगेटिवली शो हो रहा है, क्योंकि मैजिशियन इज़ लाइक उसके पास जो चीज़ है मैं उसको ले लूँ. तो देयर इज समथिंग दैट यू हैव दैट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू. सो फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम पास समथिंग. येस, देयर इज सम ग्लो अप दैट इज हैपन, क्योंकि इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट करा था, इस इंसान ने आपको बिट्रे करा था, दिस इंसान गिव यू अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. तो जिसकी वजह से देयर इज़ अ ह्यूज शिफ्ट दैट इज कमिंग into your physique specifically, कि आप अपने ऊपर आपने बहुत काम करा है, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अ ग्लो अप. ठीक है, कि ग्लो अप हुआ है आपका, समथिंग हैज़ बीन चेंज्ड इन यू, कि द पर्सन दैट दिस पर्सन द कार्मिक फाउंड यू इन द टाइम व्हेन दैट पर्सन बिट्रीज यू, आप उससे इतना इमेंस शिफ्ट आया है ना. तो या समथिंग पास्ट इज अगेन रिसर्फेसिंग इन योर लाइफ. सो यू आर बीइंग गाइडेड टू टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. मतलब आपको इस चीज़ के में नहीं करना. दैट पर्सन इज नॉट डिसअपॉइंटमेंट इन समथिंग इन देयर लाइफ, एंड दैट पर्सन wants to do some fun, some enjoyment. So there is something that has been completed. So whatever the karmic thing is, it is completed from your side. So you don't feel to be affected by this. ठीक है, आपको इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होना है, because it is not good for your energy, because आप इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो. So this person is coming to pay back to you, not कि आप और कार्मिक चीज़ें लेसन देने के लिए नहीं आ रहा है. नाउ दैट पर्सन इज कमिंग टू पे बैक टू यू. सो यू आर बीइंग टोल्ड कि अपने आप अच्छी वाली एनर्जीज में रहिए अपनी. दिस पर्सन कुड बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. राइट. सो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी अच्छी एनर्जीज में रहो, आप इस कनेक्शन को, इफ़ इट्स अ, बिकॉज आई एम फीलिंग सो, तो वट एवर हुएवर दिस पर्सन इज, आपको इस इंसान को एनर्जीज देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको जो लेसन लेना था यू हैव टेकन. या जस्ट से यू कांट प्लीज़ एवरीवन, ओनली मैटर्स इज़ यू प्लीज़, कि आपको खुश रहना है, आपको इस इंसान को टाइम ही नहीं देना है. देयर इज समथिंग अबाउट, मैंने कहा ना कुछ ग्लो अप हुआ है, या उस इंसान को कुछ ना कुछ तो आपके अंदर चेंज दिखा है, दैट यू आर बीइंग मोर ब्यूटिफुल, यू आर बीइंग, there is something change in your physique, in your features. आप जैसे अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए हो. जस्ट सी द ब्यूटी विद ब्रेन इज हियर. और क्या लोगे, ब्यूटी विद ब्रेन, उसको समझ में आ गया उस इंसान को कि आपके पास दिमाग भी है, आपके पास जो है ब्यूटी भी है, एंड यू आर अ वेरी ईजी टारगेट अर्लियर, बट आपने अब वो लेसन सीख लिया है. नाउ दैट पर्सन इज क्राइंग. Now that person feeling कि भाई did I do make some choice, wrong choice, कि उसने कोई wrong choice तो नहीं बना लिया ना उस कार्मिक इंसान ने आपको बिट्रे करके कहीं और जाने के लिए. I don't know क्या है, but this is a negative energy this person is. So I don't know if it's a love and relationship or not, but what I'm feeling it is mostly ये मेरे को ऐसे ही लग रहा है. But it's only don't take it as like very straight thing, because आटे में नमक की तरह लेनी है चीज़ें, कि दिस पर्सन, मतलब मैं सोच रही थी पूछने के लिए, बट आंसर अपने आप ही आ गया है कि ऐसी क्या चीज़ है दैट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू. सो दिस पर्सन इज सीइंग यू बीइंग इनटू द ग्रोथ पाथ, कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप उस इंसान को एनर्जीज नहीं दे रहे हो, आप उस इंसान को पीछे छोड़ करके निकल गए हो. सो दिस पर्सन इज थिंकिंग टू कैच यू अगेन, कि मैं आपको फिर से इसी जा सकती हूँ, ताकि आप ग्रोथ में ना जाओ, ताकि आप आगे ना बढ़ो, ताकि आपका बुरा हो सके. सो या दिस इज या देयर इज समथिंग शिफ्ट इन योर पर्सनालिटी. कुछ ना कुछ तो शिफ्ट आया है पर्सनालिटी में,
एंड यू आर बीइंग वेरी रिलीजियस नाउ, वेरी स्पिरिचुअल नाउ. सो आप इस इंसान को अब जो भावने दे रहे हो, जो कि इस इंसान को वही चीज़ आपकी पसंद नहीं आ रही है. दैट पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग, बिकॉज जब आप बिल्कुल सिंपलिसिस्ट थे, बहुत नाइव थे, तो दे कुड ईजली कंट्रोल योर लाइफ, दे कुड ईजली कंट्रोल यू, दे कुड ईजली मैनिपुलेट यू. बट नाउ वॉट इज़ हैपनिंग कि आप, you are taking your stance up, you are working on your goals, you are not even giving your energies जो आप पहले दिया करते थे. You are not even caring about what this person is. So you have completed your karmic cycle with this person. So now this person is feeling disappointed by seeing you much happy than this person. So yeah, that's the message कि वो इंसान अब आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है. So you needed to be like, you don't indulge into this thing. It's not good for you, because वरना वही karmic cycle दोबारा चल जाएगी. So it's good to not to indulge into. Is there any another message that I missed out? Is there any other messages that I missed out? Yeah, just see what I said, that you are being very spiritual, very religious mode. So here are these cards. There is a woman that is showing your energy, because right now you are more towards in your feminine side. So spirituality is coming on the cards, that you are being very spiritual, you are doing the spiritual development, you are going towards the path of enlightenment, and you are being aware and understanding your whole situation, that क्या आप गलत कर रहे थे, क्या आप सही कर रहे थे, in everything. Is there any other thing that is left over apart from this? Is there any other thing that is left? Is there any other thing that is left here that I miss out? Yeah, this is what you have. There is no other messages that is coming. So yeah, this is the one message that you have. Is there any other messages apart from this that you needed to be? No, इस मैसेज के अलावा दिस कार्मिक पर्सन, उसके अलावा और क्या मैसेजेस है फॉर देम? Is there any other messages apart from this? ये कार्मिक सिचुएशन समझ में आ गई है. Now anything else? Anything else that we have? Anything else that we have? We have the Ten of Swords. Okay, the Three of Swords. There is something that is going on in your mind a lot these times. When you are seeing this video, there is something, some problem that is going on in your mind. कुछ चीज़ आप ओवरथिंक करके सोच रहे हो दैट क्या है ये चीज़, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए. Empress and the Hangman.
3 could be important for you. Good luck. Protection. A two-faced friend. February. Younger man. In the month of February, there is someone, precipice आया है, there's someone who is your friend that is being shocked by seeing your growth. There's something that has happened because ये मैसेज दोनों में ही था that आपका कुछ ना कुछ तो ग्लो अप हुआ है. There is something that has happened for some of you. There is a younger man. For some of you, there is a woman. Harmon is also here. So there is something, some glow up that has happened in you. ठीक है, आपने क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी दिख रही है. मैंने पिछले उसमें कहा था दैट देयर इज़ मोर योर फेमिनिन एनर्जी दैट इज़ कमिंग अराउंड. ठीक है, तो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ बीइंग योर टू फेस फ्रेंड. ठीक है, दैट पर्सन इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड टू हैव, क्योंकि या just these are their energy, these are your energies, like 10 of swords and empress, because due to some karmic situation, क्योंकि मैं दोनों मैसेजेस को कनेक्ट करके बोल रही हूँ. सो ड्यू टू सम कार्मिक सिचुएशंस, तो आपने 10 ऑफ सॉर्ट्स इज लाइक एंडिंग. आपने एंड कर दिया है, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है. यू लर्न योर लेसन फ्रॉम दैट कार्मिक सिचुएशन एंड यू वर्क ऑन योर सेल्फ नाउ. आपने अपने ऊपर काम किया है. बट दिस पर्सन हु इज़ योर फ्रेंड is being like in a 3 of swords energy, that feeling like a heartbreak by seeing you, because hangman एकदम ऐसे शॉक में by seeing the empress. तो वो आपको इस एनर्जी में देख करके कि एकदम कितना ह्यूज शिफ्ट आपके अंदर आया है. सो दैट पर्सन इज फीलिंग लाइक even that person when you were in your 10 of swords energy ना, जब आप अपने एकदम लीस्ट पे थे कि इससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता, ऐसे टाइम पे थे. सो दैट टाइम ऑल्सो दिस पर्सन फील जेलस, फील इन्फीरियर अराउंड यू. दिस पर्सन, उसको जब भी वो नहीं अच्छा लगता. वाई दिस पर्सन इज बीइंग हैविंग अ नेगेटिव इंटेंशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. वाई दिस पर्सन डजंट लाइक, what does this person, this friend is two-faced, what it is, just tell me. Right, क्या है इनको प्रॉब्लम मेरे व्यूअर्स से. why these, सीधा ही कार्मिक निकल के आया. कार्मिक, because this person is your karmic. आपका कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है. That's why it is happening. You are pretty like you. And you are even protected. So आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है. या कि इंसान कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आपको दे रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. ठीक है, बट दैट पर्सन इज़ लाइक कि वो अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है कि वाई, क्यों आपका इतना ह्यूज ग्लो अप हो रहा है, क्यों आपकी लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें ग्रोथ में हो रही है. वाई योर लाइफ इज सुपर स्पीडी. और वॉट एल्स इज देयर, क्योंकि इस इंसान को जेलस फील कराते हैं. ओ माई गॉड, या it's like this person could be Libra, Gemini, Aquarius, and the minute you decide for yourself, universe begin to shift in your favors. यानी कि
देयर इज समथिंग लाइक स्पिरिचुअल अबाउट यू, जो कि इस इंसान को जिस चीज़ से चिढ़ होती है, इस इंसान को उस चीज़ से जेलसी होती है, दैट पर्सन डजंट लाइक दिस, कि आपका ऐसा है, मेरे को तो आपसे स्पिरिचुअल वाइब ही मिल रही है, एंड एज यू आर ऑल्सो व्यूइंग माई वीडियो एज वेल, कि द मिनट जब आप डिसाइड कर लेते हो अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करने का, या ऐसा भी कुछ, फॉर एग्जांपल इफ़ यू थिंक कि नहीं अब मैं अपने सेल्फ लव पे ध्यान दूंगी, अब मैं अपनी फिजिक एक्सरसाइज करा करूँगी, अब मैं स्केड्यूल पे काम करूँगी अपने, तो यूनिवर्स इज ऑल्सो गोना बी सपोर्ट यू, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, यूनिवर्स कभी आपको मना नहीं करता है, यूनिवर्स ऑलवेज सपोर्ट्स यू। तो उस चीज़ को ये इंसान जो है जानता है, एंड दैट इज मेकिंग दिस पर्सन टू बी इन्फीरियर टूवर्ड्स यू, ठीक है, बिकॉज यू कुड बी अ मैजिकल मैनिफेस्टर एंड दिस पर्सन नोज अबाउट दैट, ठीक है, कि आप एक मैजिकल मैनिफेस्टर हो, आपने जिस काम पे हाथ रख दिया आप उसको करके ही मानोगे, और यूनिवर्स भी आपको उस चीज़ काम करने में हेल्प करेगा ही करेगा, राइट, बिकॉज यू हैव अ गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स एवरीथिंग, राइट, बट दिस पर्सन फील्स लाइक it's an injustice that is happening towards them, that you are super beautiful, charming, handsome. That person also feels like कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत खूबसूरत हो, उस चीज़ से भी इसको चिढ़ होती है कि आपने, एक तो ये तो है ही कि आपने जैसे जो काम अपने हाथ में लेने का सोच लिया, नाउ अब चीज़ें आपके हिसाब से चलें, तो वो इस इंसान को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, वो इंसान को ये चीज़ें भा नहीं रही है, उस इंसान को उस चीज़ से जेलसी हो रही है, दैट वाई, कि जो आपने कह दिया वैसा ही होता है। आई डोंट नो क्या ही है ये। आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट द सन, मतलब कि यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशंस फ्रॉम द पीपल इवन, ठीक है, आपको अटेंशंस मिल रही है लोगों से, तो उस चीज़ से भी इस इंसान को चिढ़ होती है, दैट दिस पर्सन फील्स कि क्यों ये इतना सुंदर है, या क्यों ये इतना अच्छा है, या क्यों इसके पास चीज़ें अपने आप चल के आ जाती है, या यू आर अ ब्राइट लाइक अ सन, कि आप एकदम सन के तरह हो, दैट नो बडी कुड इग्नोर यू, यू आर लाइक द सन, यू आर द सन, ठीक है, तो वो चीज़ें इस इंसान को पसंद नहीं आती, इन शॉर्ट इस इंसान को ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि क्यों आपके हिसाब से सारी चीज़ें होती है, क्यों यूनिवर्स आपको इतना फेवर करता है, क्यों यूनिवर्स आपको इतना पसंद करता है, ठीक है, सो नाउ एंड यू ट्रस्ट द गॉड, यू नो कैसे चीज़ें होती हैं, एंड यू डू अ हार्ड वर्क फॉर दैट इवन, ठीक है, कि आपको हर चीज़ जो है बिना मेहनत करे भी मिल जाती है, ऐसा भी इंसान सोचता है कि क्यों आपके हाथों में सभी चीज़ें आ जाती हैं, इवन यू डोंट डू एनी थिंग, और वो इंसान इतना करने के बावजूद भी उस चीज़ को नहीं ला पाता अपनी ज़िंदगी में। और क्या चीज़ है जिससे ये जो इंसान है मेरे व्यूअर से जेलस फील करता है? ये इंसान ना आपके पास साथ ना बहुत अच्छा बनता होगा, इवन व्हेन यू हियर दिस ना, तो आपको लगेगा नहीं यार ये इंसान थोड़ा ना होगा, बिकॉज इस इंसान की हिडन नेगेटिव आइज है आपके ऊपर, हिडन नेगेटिव आइज है आपके ऊपर, जो कि इज लाइक नॉट गुड टू हैव। Something about western dress or something that could be important for you. That whatever you always wish for, वही सब चीज़ें आपकी लाइफ में होती है।
यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास पैसा भी कहीं ना कहीं से आ जाता है. So devastating energy of this person. December, financial crunch, November. Let me decode these three cards. Just see, coins will be coming to you. And they have a negative eyes towards your coins. वो जानना चाहते हैं about someone in your energy that is going to be coming in the month of May as well. ये भी इंसान के पास, it's something like you shares too much about yourself. They want to know each and everything. कैसे करते हो, कैसे नहीं करते हो, कैसे आप इतने लाइट हार्टेड रहते हो इतना कुछ जानने के बाद, सब कुछ. They want to know everything about you. And this person knows a lot about you because you trust this person, but this person is not at all trustworthy. So money will be coming to you. And they want to know how you earn these money. क्या करते हो, कैसे manifest करते हो, क्या करते हो. And there's someone that is coming into your life in the month of May. They also wants to know about this कि क्या है क्या नहीं है. जिनको भी आपने बताया होगा वही वो इंसान है एंड जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है. एंड इवन देयर इज़ अ मनी दैट ऑलवेज कम्स टू यू. और उनको हमेशा माइजरी वाले फॉर्म में रहना पड़ता है, हमेशा कंजूसी करनी पड़ती है, उनके पास पैसे नहीं होते. मतलब दिस पर्सन ट्राइज टू कॉपी यू इवन, बट आपके पास क्या है, यू नो आपकी लाइफ आपको पता है कि कैसी है कैसी नहीं है. ठीक है. एंड तो दिस पर्सन ऑलवेज कॉपीज यू, ऑलवेज being a copycat towards you, and that is, एंड वो इंसान जितना भी आपको कॉपी कर लो, जब कभी भी आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाता. इट्स लाइक कि करते जा रहे लेकिन कोई किनारा ही नहीं दिख रहा है. ठीक है. सो even that is the most devastating thing about this person is this person thinks that you don't do anything जब भी आपको चीज़ें मिल जाती है, and this person do a lot of things जब भी उसको चीज़ें नहीं मिल रही है. there is something about that you have that this person doesn't have, and that is what making this jealousy in them. Yeah. And they want to know about this कि कैसे करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, how you do these things. Okay, so this was the second message. Now let me get the third message for you. The third message that these people, all the viewers of mine, should need to listen to. क्या चीज़ इनको जाननी ज़रूरी है. The third message that they need to hear. I heard the word abundance. What I'm feeling that this message is about to be in the future. That's something that is going to be happen in the near future. कुछ तो फ्यूचर में होने वाला है जिसके लिए मैसेज है. ये अभी आपको सिर्फ 2 उसमें चौकन्ना करा गया है कि देयर आर सो मेनी नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू.
who have wrong intentions towards you. But this message what I'm feeling is a little bit different because ये आपको future के लिए कुछ hope देगा. There will be something about the future. The King of Cups, the Hermit, the Death, the Five of Cups, and the World. I heard the music that ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आँखें, कोई राज है में गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. Yeah, there's some problem that is gonna be over, that you are being very frustrated about. There are some obstacles that you are dealing with. या तो अभी कर रहे हो या तो in the near future you will do changes in your life. A period of ill health and depression. Okay. New job or career. This is a career message for you. And the happiness and the new home and new attitude is here. There will be some thing that is gonna be happen जो कि एकदम से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है in the career. ठीक है. In the career you are getting a huge problem. I must say that थोड़ी सी बड़ी है ये, छुटमुट नहीं है ये. In the month of February itself ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी. Younger man, a long journey, fear, tension, worries, tense situation, and the good fortune. In the month of February आएगी ये प्रॉब्लम, and जो कि आपको बिल्कुल शेकअप कर देगी आपकी लाइफ को. टावर कार्ड आया नहीं है बट मुझे वही फील हो रही है बिकॉज एक फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है एंड देयर सम ह्यूमन दैट इज क्रिटिसाइजिंग यू इन अ हैप्पी सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस. ये इंसान आपका बुरा नहीं चाहता है. ये तीसरा इंसान, कितने लोग हैं आपके लाइफ में बट वो दोनों तो आपके बारे में बुरा चाहते थे, बट तीसरा इंसान जो है ये बुरा नहीं चाहता है. बहुत ही टीचरी गाइड जैसी वाइब है इनकी. ये ऐसा है कि ना आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो, दे आर गाइडिंग यू. इट्स लाइक कि ओके विद द किंग ऑफ कप्स एंड द हर्मिट वाली एनर्जी मेरे को इनकी फील हो रही है दैट दे आर गोना बी गाइडिंग यू टूवर्ड्स समथिंग, दैट दिस मैन इज गोना बी गाइडिंग यू टू मेक यू वाइज इनफ टू डील विद एनीथिंग इन योर करियर में. या करियर है ना, इट इज़ इन योर करियर एरिया जहाँ पे एक मैन है हु इज़ गाइडिंग यू, जो कि आपको गाइड कर रहे हैं. एंड मोस्टली चांसेस है कोई टीचर ही हो सकते हैं बट हर किसी की सिचुएशन पे अलग अलग वेरी करेगा. बट देयर इज समवन इन अ मैस्कुलिन एनर्जी हु इज़ गाइडिंग यू, हु इज़ प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ में आपको ये इंसान जो है, ये जो टीचर है या whoever this human is, वो आपके अंदर चेंजेस ला रहे. लाइक इफ़ यू सी द डेथ कार्ड ना, इतना मेजर भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा ना दैट यू आर गोना बी फील इतना सारा ओवरवेलमिंग एनर्जीज, बट वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है. ठीक है, बिकॉज आप बहुत इमोशंस से चलते हो. वो आपके आके आपके इमोशंस को ही तोड़ेंगे, क्योंकि मे बी आप करियर में इमोशंस के साथ चलते हो तो इस वजह से आप करियर में अपना 100% नहीं दे पा रहे हो. आप अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को चलाने देते हो करियर में, तो आपको एकदम नया इंसान बना देंगे ये जो भी हैं, कि आपको एकदम नया इंसान बना देंगे बिकॉज आप कोई चीज़ गलती कर रहे हो जिसमें ये जो हैं ये आपको गाइड करने आए हैं कि जस्ट लिसन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू.
इस चीज़ पे चलो, आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। यू विल फीलिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, बट एट लास्ट जब आप इस चीज़ को पीछे मुड़ के देखोगे यू विल बी गेटिंग कि अच्छा है हुआ। वरना मतलब 9 ऑफ कप्स है बैक ऑफ द डेक, सो ये आपको बना देंगे कि इमोशनली इंडिपेंडेंट, कि कैसे अपनी इमोशंस को काबू में करें, ना कि इमोशंस आपको आपके काबू में करें। इट्स जस्ट इमोशंस को कैसे काबू में करा जाता है, ये चीज़ ये आपके जो सर हैं या जो भी ये हैं हर्मिट पर्सनालिटी में, ये आपको गाइड करेंगे। ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाओगे, आपको बहुत टेंस भी हो जाएगा, बहुत मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉट इन अ बिग, नहीं इतना भी बिग नहीं है, इट्स जस्ट कि अगर आप काम नहीं करोगे सो आपको डांट रहे हैं, आपको समझा रहे हैं इन अ पॉजिटिव सेंस। या जस्ट सी क्या कार्ड है, करियर इज द प्रायोरिटी। वो आपको समझा रहे कि कैसे करियर कितनी प्रायोरिटी है और आपको आपके इमोशंस के से डील करना कैसे कर सकते हैं आप, कि आप शायद करियर में अपना 100% नहीं दे रहे हो। अब नहीं दे रहे हो तो दे आर कमिंग टू टीच यू कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो। बिकॉज अभी नहीं सुधरोगे फिर बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इससे अच्छा है कि इनसे अभी सुधर जाओ। मतलब वो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरी चीज़ आपको सिखाएंगे इट्स लाइक कि करियर आपके प्रायोरिटी और कैसे इमोशंस को अपने आप को ओवर पावर करने नहीं देना है। ठीक है, एंड या दे आर गोइंग टू टीच यू कि कैसे इमोशंस को कैसे ओवर पावर करने नहीं देना है अपने आप को, कैसे करियर को प्रायोरिटाइज करना है। वॉट एवर दे आर सेइंग इन योर करियर, वॉट एवर दे आर गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर करियर, यू शुड बी लिसनिंग टू इट। ठीक है, आपको वो चीज़ें सुनने की ज़रूरत है और अपने लाइफ में करने की ज़रूरत है। डोंट गिव द डबल थॉट्स कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको सही गाइड कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है, जब ही आप एक अच्छे करियर में जा सकते हो, वरना बहुत प्रॉब्लम आएगी। एट द बैक दैट यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, कि दे आर गोइंग टू बी डू समथिंग जो कि आपको हिला के रख देगा, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देगा, जिससे आपको लगेगा वाई क्यों हो रही है ये चीज़ें। क्रिटिसिज्म है यहाँ पे, बट इट्स अ गुड क्रिटिसिज्म दैट इज हैपनिंग, सो यू नीड टू बी लिसनिंग टू इट। ठीक है, लाइक थर्सडे इज कमिंग, यहाँ पे ऐसा नहीं थर्सडे को कुछ होगा। थर्सडे इज द एनर्जी ऑफ द गुरु। गुरु यानी जपिट, यानी कि दे आर हैव अ फुल ऑफ विजडम एंड दे आर गोइंग बी टीच यू देयर विजडम। तो आपको बहुत ध्यान से उनके विजडम को कैरी करना है। वॉट एवर दे आर गाइडिंग यू, जस्ट फॉलो दैम। ठीक है, फॉलो करो उस चीज़ को। आपको रूट्स बनाएंगे। आप किसी चीज़ को लेकर एडिक्टेड हो रहे हो, तो किसी चीज़ में नेगेटिव एनर्जीज डाल रहे हो, सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू टू गाइड यू ऑन अ राइट वे। कुछ गलती कर रहे हो आप अपने करियर में, तो उनकी सुनो, दे आर गाइडिंग यू इन अ करेक्ट वे। ठीक है, सो दिस वॉज द थर्ड मैसेज, दैट इन योर करियर देयर इज सम मैस्कुलिन हु इज गोना बी गाइड यू टूवर्ड्स द राइट पाथ, बिकॉज आप कुछ गलत चीज़ों में अपनी एनर्जीज को पुट कर रहे हो। सो जस्ट be aware of it and follow. Is there any other message apart from these 3 messages that they need to hear? Okay, let me get the 4th message as well. I'm not sure कि कोई messages है आपके लिए 4th में या नहीं, but this would be my last message for you, कि last message होगा तो 4th message, and let me get the card for you कि चौथा message आपको क्या सुनने की ज़रूरत है about your situation, because I'm seeing a lot of messages but I'm not clear, because ऐसा भी हो सकता है कोई message फिर से repeat हो रहा हो आपके में. So let's see, this would be last message that you are going to be seeing in this video. There are total 4 messages that I'm thinking. ठीक है, क्योंकि आई एम गोइंग विद द फ्लो, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रखा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि हाँ देखा जाएगा, जो मैसेज आ रहे हैं आने दो, एंड या बिकॉज आई एम हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू एडवाइज यू, आई एम गोइंग टू बी हेल्प यू इन द प्रॉब्लम, राइट। सो लेट मी गेट द कार्ड्स कि क्या है, वॉट आर द 4th मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे नीड टू हियर। ओके, 1 कार्ड आ गया है, दैट इज द मून। मून इज
एक ही कार्ड ही निकला है टेरॉ में से एंड डीप चेक करते हैं। ओके, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। Someone will gossip about your secrets, back में है ये, या someone position of authority, don't back down, show strength and fortitude. Yeah, someone who has the same gender as you, जो कि ये चीज़ आपकी हिडन है बट आपको अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज वट एवर योर इंस्टिंक्शंस इज सेइंग, योर इंट्यूशन इज सेइंग, वो सही है और आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है बिकॉज कुछ दिन वो चीज़ सामने आ जाएगी। नाउ दिस इज द थर्ड पर्सनालिटी जो कि आपके खिलाफ है। many will come to you. Okay. An exciting event. Okay, there is someone who has the same gender as you. अब वो आपको एज इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी पे देख करके खुश नहीं है। That person is sending you an evilish and negative energies towards you. कितने लोगों को आपने अपने बारे में बता रखा है, या फिर why this person is feeling jealous to you, कि अगर आप कर रहे हो तो you have done some hard work towards it, right? Why these person is too much concerned about you and that person is also concerned about some men. मतलब आपको अपने हिसाब से लेना है ये मैसेज कि इफ़ यू आर अ मैन सो देयर इज सम वुमेन इन योर एनर्जी, नो देयर इज समवन, देखो समझाती हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर अ मैन तो आपका कोई दोस्त है who feels jealous कि why the person, there's some girl around you that you like or that girl likes you, उस चीज़ से उस आपके दोस्त को जलन हो रही है, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। एंड ऑन द अदर साइड इफ़ यू आर अ गर्ल, सो आपकी कोई गर्ल दोस्त है जो कि इस चीज़ को लेकर के जेलस फील कर रही है, इस चीज़ को लेकर के अच्छा फील नहीं कर रही है कि वाई दैट मैन इज़ गिविंग यू द अटेंशन, या इवन वाई यू आर गिविंग योर इंटेंशन टूवर्ड्स, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग ऑन दिस रोड, ठीक है, यही है, कुछ ऐसा ही है। वो आपको अपना थोड़ा सा रेजोनेट करना पड़ेगा, बट या थोड़ा सा इधर उधर कर लेना, डोंट टेक इट लाइक स्ट्रिक्टली, एनर्जीज को मैच करो कि कुछ ना कुछ ऐसा है। सो या गवर्नमेंट जॉब इज ऑल्सो कमिंग, या दैट पर्सन फील्स दैट यू आर लकी कि आपका करियर भी अच्छा है, आपका लव लाइफ भी अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, पैसे आ रहे हैं, सरकारी नौकरी है नहीं तो लग जाएगी, यू हैव ऑल द मटीरियलिस्टिक डिज़ायर, यू कुड बी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपकी मेरे को वाटरी एनर्जी लग रही है, आपने अपने इंट्यूशन को रिजेक्ट कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन के नहीं सुन रहे हो बिकॉज दिस पर्सन इज सेंडिंग यू एन जेलस वाइब्स। तो क्योंकि आप उसको लगता है कि आपका करियर भी बहुत अच्छा है, आपको टेंशन्स भी बहुत मिलती है, आपका सब कुछ अच्छा है, दैट पर्सन डजंट लाइक यू। यानी कि आपका ना एज एन होल मेरे को जो दिख रहा है, इट्स लाइक यू आर बीइंग वेरी लकी, यू आर बीइंग वेरी चार्मिंग, यू आर बीइंग एवरीथिंग, सब कुछ है आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है इन सभी लोगों के हिसाब से। आई डोंट नो आपको क्या लगता है, बट इन सभी लोगों के हिसाब से मेरे को तो लगता है आप अपने आप को बहुत ही सिंपलिसिस्ट मानते हो, मेरे को ऐसा लगता है आप अपनी वर्थ ज़्यादा नहीं जानते हो, बट या और लोग आपकी वर्थ को बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि यू आर गेटिंग, अगर आपकी लाइफ में कोई है भी नहीं, सो इट्स जस्ट कि लोगों को पता है कि दैट यू हैव अ लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है, आपको अटेंशन्स मिल रही है, आपका करियर अच्छा है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब तो उसके हाई चांसेस हैं कि आपके लग जाएगी, या फिर आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। और व्हाट एल्स इज कमिंग, हाँ, सो इन दिस देयर इज़ अ वुमेन, मतलब जो भी आपका जेंडर है वो इंसान उस चीज़ से थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है,
आपसे, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत लग रहा है मुझे. एंड दैट पर्सन इज लाइक at the back we have here, that is climbing towards success, and someone will gossip about all of your secrets. यानी कि आपको ऊपर चढ़ता हुआ देख के कि इस इंसान को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है. Any other messages that I miss out? Is there any other messages that I miss out? या और कोई मैसेजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं वैसे तो. लेट मी ट्राई लास्ट टाइम. Is there any other messages that they need to? So ये इंसान ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना ये इंसान बहुत आपके आसपास रहेगा, बहुत ही एक फेक स्किन लगा करके, टू नो सम सीक्रेट अबाउट योर लाइफ, कि कैसे आप ये सब चीज़ें करते हो, या आपके लाइफ को वो कॉपी करने की कोशिश करेगा. हाँ, मुझे यही आ रहा है कि ये इंसान जो भी है, ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करेगा, टू बी लाइक यू, टू चेंज देयर पर्सनालिटी एज यू. आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं अपने साइड में मिरर ही देख रही हूँ. सो हाँ, क्योंकि ये इंसान आपको कॉपी कर रहा है, बिल्कुल हेड टू टो पूरा कॉपी कर रहा है. हर एक चीज़ में आपके एटिकेट्स, आपके सब कुछ, एवरीथिंग. या बहुत ही बेकार लगता है अगर कोई ऐसा करता है. बट या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको कैसे डील करना है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन ये कह रही है, मे बी ये आपसे चीज़ छुपी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रही है. दैट्स वाई यू आर हैविंग दिस एज योर फ्रेंड, और वट एवर, इफ यू थिंक और नॉट. So yeah, you are very lucky, you have everything, and this person feels jealous to this. So yeah, this is all I have. There are the 4 messages that is really needed for you to listen to her, and I hope so that this video is gonna be help you in some way, कि आपकी इससे कुछ मदद हो रही हो. And I hope so that whatever you wish for with a good intention is gonna be fulfilled by the universe, by the divine. And I hope so that this week is going to be good for you. So very fortunate even for you. So yeah, all the best for your life, all the best for everything, and thank you so much for watching this video till now. And if you feel resonated with this video, so please feel free to like, comment and share, and do please subscribe my channel, because it means a lot for me. Thank you so much.